Hello students, I am Jyoti Yadav. Welcome back to my new channel. Today we will discuss about the life in grasslands and dry areas in geography. We have discussed about the three forms of the natural vegetation in previous chapters. Three forms of natural vegetation is forest, grasslands and the shrubs and herbs. Already we have discussed about the forest and shrubs. So in this chapter we will discuss about the third form of the natural vegetation, that is the grasslands. You know very well about that the natural vegetation is vegetation which grow naturally, means उसमें किसी का कोई भी contribution नहीं होता, स्पेशली ह्यूमन एक्टिविटीज़ का. तो इसी तरह से इसका तीसरी फॉर्म है ग्रासलैंड, जिनकी फॉर्मेशन, जिसके डेवलपमेंट में, जिनकी ग्रोथ में ह्यूमंस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता. और उन ग्रासलैंड्स एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, उनके नेचुरल वेजिटेशंस, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. वी विल डिस्कस अबाउट दिस. In the previous lesson, we have read about life in the tropical and subtropical region. And in previous chapter, we have discussed about the lifestyle in the tropical region and as well as the subtropical region. We have discussed about the Ganga Brahmaputra Delta and the Amazon Basin Delta. These regions are found in the tropical or subtropical regions. Similarly, in this chapter, we will read about natural vegetation, wildlife and human habitat in temperate grasslands and dry areas like deserts. But in this chapter we will discuss about the natural vegetation, wildlife and human habitat, मतलब मनुष्य कैसे रहते हैं, उनके घर हैं, उनकी लाइफस्टाइल है वो कैसी है, कहाँ पर, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, ठीक है. और इन ड्राई एरियाज लाइक डेजर्ट, और जो ड्राई एरियाज है वेयर द क्लाइमेट इज वेरी एक्सट्रीम, रेदर हॉट और रेदर इज अ cold. So in this chapter we will discuss about the desert part also. As studied in previous lessons, grasslands are regions with rainfall deficient for forest trees to grow and more than enough to keep the land dry. This is the definition of the grasslands. कि grasslands वो होते हैं जहाँ पर the rainfall is not sufficient for growing the forest और फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ट्रीज, जहाँ पर रेनफॉल सफिशेंट नहीं होती, किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए. और जो उनकी हाइट्स है वो भी क्या होती है, बहुत ही कम है, और साथ में एरिया क्या होगा, ड्राई. तो वो एरिया क्या कहलाता है, ग्रासलैंड. ग्रासेस ग्रो इन सम हाइट इन दीज रीजन्स एंड आर कॉल्ड ग्रासलैंड. और इसलिए वहाँ पर क्या है, जो ग्रास है वो ग्रो होती है. हाइट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल there is the difference between the heights of the grasses and these areas are called the grasslands. On the other hand, deserts are the vast landscapes with sand and very minimum vegetation. लेकिन desert की अगर हम definition देखें तो where the deserts are the vast landscapes, it means land area तो बहुत ज़्यादा होगा but with the sand or very minimum vegetation, it means no vegetation is देयर. स्पेशली डेजर्ट एरिया में, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो या फिर कोल्ड डेजर्ट हो, वहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल ही कम मिलेगी. क्यों? क्योंकि क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग ऑफ एनी टाइप ऑफ वेजिटेशन. सो लेट अस नाउ रीड अबाउट द लाइफ सस्टेनिंग इन दीज रीजन्स. सो वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑन दीज रीजन्स like the desert and like the grasslands. First is the temperate grasslands. Like forest have trees, grasslands have grass. की जैसे forest में क्या होते हैं, trees होते हैं different heights के. Similarly grasslands में क्या होगी, grass होगी. कैसे, different heights की. We have divided the world grasslands into two categories, the temperate grasslands and the tropical grassland. You know very well about our earth is divided into the three regions, temperate regions, torrid zone, temperate zone और the फ्रिजिड जोन. तो टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल रीजन्स वो हो गए जो नियर द ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, तो वहाँ जो ग्रासलैंड होंगे, ग्रो होंगे, उन एरियाज को कहेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. और जो टेम्परेट रीजन्स में जो ग्रासलैंड फाउंडेड होते हैं उनको कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स. तो इस चैप्टर में हम केवल टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स बहुत कम एरिया में हैं. ज़्यादातर क्या है, ट्रॉपिकल रीजन्स में हैवी रेनफॉल होती है तो फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है. बट टेम्परेट रीजन्स में क्या है, मॉडरेट रेनफॉल होती है, कहीं पर बहुत ही कम है. तो इन रीजन्स में ग्रासलैंड एरिया सबसे ज़्यादा कवर्ड है. तो इसलिए इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स के.
The grasslands depend on factors like climate and the soil. Like as other forms of vegetation, the grasslands are also different in the climate and the soil. In this section, we will study about two temperate grasslands, the prairies of North America and the wild of South Africa. और इस चैप्टर में हम स्पेशली जो वर्ल्ड के फेमस जो दो ग्रासलैंड्स हैं, एक नॉर्थ अमेरिका में जिसको क्या कहते हैं प्रेरीज, और दूसरा है वेल्ड जिसको साउथ अफ्रीका में कहते हैं वेल्ड, इनके बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी फेमस हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है द प्रेरीज का। दे आर फाउंड इन द USA एंड कनाडा। दीज आर द नेम ऑफ द टू कंट्रीज वेयर दिस टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स आर फाउंडेड एंड द स्प्रेडेड। दे हैव फ्लैट एंड जेंटल स्लोप इन द वेस्ट। वेस्ट में अगर देखें तो इनका जो फ्लैट है और स्लोप में है जेंटल है। ऑफ मिसिसिपी और हिली एरियाज ऑफ द रॉकी माउंटेन, जो किसकी वजह से है, मिसिसिपी रिवर और उधर से क्या है रॉकी माउंटेन्स है, इसकी वजह से क्या है इनका जो एरिया है वो कैसा है जेंटल स्लोप है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सी ऑफ ग्रास बिकॉज no trees are found in the high region but near the lowlands where river valleys connect। और इन एरियाज को इस ग्रासलैंड को क्या कहते हैं सी ऑफ ग्रास। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी भी तरह के ट्रीज यहाँ पर आसपास नहीं है। ग्रासलैंड में ज़्यादातर यहाँ पर क्या है सारे ग्रासलैंड, जैसे कि आप पिक्चर में नीचे देख भी सकते हैं कि पूरे एरिया में क्या है घास ही घास आपको दिखाई दे रही है, कोई भी ट्रीज यहाँ पर नहीं है। और आपस में लो लैंड एरिया से किससे कनेक्टेड है, रिवर वैलीज से, जो नीचे रिवर वैलीज है वहाँ पर फॉरेस्ट है उनसे ये कनेक्टेड है। ग्रास हाइट्स रीचेज अप टू 2 मीटर्स, और यहाँ पर जो ग्रास पाई जाती है उसकी जो हाइट है वो कितनी है 2 मीटर्स है। ठीक है। द ग्रासलैंड स्ट्रेचेज टू द वेस्ट इन द रॉकी माउंटेन्स। वेस्ट में अभी मैंने पढ़ा कि रॉकी माउंटेन्स है वहाँ तक है। एंड टू द ईस्ट इन द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और ईस्ट में इसका स्प्रेडिंग एरिया है ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कि कनाडा से लेकर कहाँ तक है ये नॉर्थ अमेरिका USA तक। द प्रोविंसेस ऑफ मैनिटोबा, अल्बर्टा, सास्कचवान एंड ओंटारियो कमिट्स टू द कैनेडियन प्रेरीज, और जो कंट्रीज हैं इसके अंडर में आते हैं, इस एरिया को कवर करते हैं, ये इन कंट्रीज के नेम हैं। द प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मिनेसोटा, नेब्रास्का, लोवा एंड द विस्कॉन्सिन कमिट टू द USA प्रेरीज, की जो हिस्सा कनाडा में थे उन कंट्रीज का नाम हमने पढ़ा, और जो हिस्सा USA में है उसके ये कंट्रीज के नेम हैं जो इसको कवर करते हैं। टू ट्रिब्यूटरीज द मिसिसिपी इन द USA एंड द Saskatchewan river drains the prairies. There are the two names of the rivers which drains this area, that is the Mississippi and the Saskatchewan। ये दो रिवर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है पानी की सप्लाई है। द टोटल स्ट्रेचेज ऑफ द प्रेरी इज 6000 किलोमीटर नॉर्थ साउथ एंड 2000 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट। ये इसका क्या है लंबाई और चौड़ाई का मतलब पूरा एरिया यहाँ पर दिया गया है कि ये कितने किलोमीटर नॉर्थ साउथ में है, कितने किलोमीटर ईस्ट वेस्ट में है। अमेरिकन इंडियंस वर द नेटिव ट्राइब ऑफ दीज ग्रासलैंड्स अलॉन्ग विद द क्री, द अपेचे, द क्रो एंड द पायोनी। कि अमेरिकन इंडियंस वर द मतलब जो अमेरिका में रह रहे हैं और जो इंडियंस हैं वो इसकी ट्राइबल सोसाइटी है, एक नेटिव ट्राइब है, मतलब उनका बर्थ प्लेस यही है। साथ में यहाँ पर ये और कुछ ट्राइब्स का नेम दिया गया है। द अमेरिकन इंडियंस वर पॉपुलरली नोन एज ब्लैकफुट इंडियंस, और यहाँ पर जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनको क्या कहते हैं ब्लैकफुट इंडियंस, मतलब जो इंडियंस हैं और अमेरिका में जाकर सेटअप हो गए हैं उनको वहाँ पर एक टाइटल दिया गया है जिसका नाम क्या है ब्लैकफुट इंडियंस। ठीक है, ये था प्रेरीज का इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से रिवर्स हैं, किस तरह से इसका एरिया स्प्रेडिंग है, कौन कौन से कंट्री से ये कनेक्टेड है। उसके बाद आता है इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन। अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इसका मतलब ग्रासलैंड है, इसका मतलब यहाँ पर रेनफॉल तो बहुत ही कम होगी। तो यहाँ बाकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन टेम्परेचर वगैरह का हम देखते हैं। द समर्स आर वार्म एंड विंटर्स आर कोल्ड। समर्स क्या है, गर्मी है यहाँ पर वार्म होंगी, क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स बीच में है। इधर सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन टेम्परेट, तो यहाँ पर क्या है टेम्परेचर क्या होगा मॉडरेट होगा। द रेनफॉल इज 50 सेंटीमीटर ऑन एवरेज एवरी ईयर एंड फॉल्स ड्यूरिंग समर।
और साथ में जो रेनफॉल का एरिया है वो कितना है 50 सेंटीमीटर, और पूरे साल भर में फॉल ड्यूरिंग द समर। और ये रेनफॉल भी कब होती है, ड्यूरिंग द समर सीजन। जैसे हमारे यहाँ पर जो रेनफॉल है वो कब होती है, मानसून सीजन में। द मानसून विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम जुलाई टू सितंबर और समटाइम्स इन सितंबर और अक्टूबर। तो इसी तरह से यहाँ पर जो बारिश हो रही है 50 सेंटीमीटर, ये कब होती है, केवल समर्स के अंदर। द कोल्ड टेम्परेचर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द कोल्ड पोलर विंड्स इन द नॉर्थ एंड नो ट्रीज टू स्टॉप दैम। और साथ में जो सर्दियां है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, क्यों, बिकॉज द सम कोल्ड विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड नो एनी बैरियर इज देयर लाइक एज इंडिया। कि इंडिया का जो बैरियर है नॉर्थ में हमारा हिमालय है, इसीलिए हमारे देश का टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट रहता है। अदरवाइज हमारे देश भी क्या होता है, एक ठंडे कंट्री में काउंट होता है, जैसे कि ये रीजन है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल से जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको रोकने के लिए ना ही कोई हिल्स है, ना ही कोई फॉरेस्ट रीजन है, तो जिसके वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही कम है। दिस इज ऑल बिकॉज द रीजन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। और इसीलिए ये इसका जो पूरा एरिया है किसमें है, कॉन्टिनेंट में के इंटीरियर पार्ट्स में ही आता है। ठीक है, ना ही तो नेस्ट में, ना ही वेस्ट में, ना ही नॉर्थ साउथ में, ये क्या है, अंदर वाला बीच का जो हिस्सा है उसी में ये काउंटेड होता है। The rainfall decreases from south to north and east to west, and the rainfall area, which is the 50 centimeter, it is decreases from south to north. It means when we are going to south to northward, it will be decrease, and east to west, और east से west की तरफ जाएंगे तो भी इसका रेशियो क्या हो जाएगा, कम। जैसे हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हमारे इंडिया में क्या है, रेनफॉल इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिक्रीज होता है। द विंड ब्लोज स्ट्रॉन्ग थैस क्लियरिंग द ग्रास ऑफ स्नो। और यहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज स्पीड से चलती हैं, और जिसकी वजह से क्या है, स्नो क्या हो जाती है, वहाँ से हट जाती हैं, जो भी स्नोफॉल होती है। क्योंकि ठंडा एरिया है, मैंने बताया कि ग्रासलैंड्स में ठंडी हवाएं चलती है नॉर्थ पोल से, इस वजह से क्या है, टेम्परेचर कम है। लेकिन यहाँ हवाएं तेज चलती हैं, इस वजह से क्या है, जो स्नो है घास के ऊपर जो जमी रहती है वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। During winters, there is a snow blanket that prevails over most part of the prairies, and during the winters, there is a blanket which is covered by the snow. All prairies region is covered with the snow blanket। कि उस पर पूरे, जैसे हम सर्दियों में हम देखते हैं घरों के बाहर खेतों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ओस जमा होती है, कई जगह पर पाला, जिसको कहते हैं पाला जमा हुआ है भाई। इसी तरह से यहाँ पर भी विंटर्स के समय क्या है, इन ग्रासलैंड्स के ऊपर बर्फ की एक परत सी जमी होती है। चिनोक इज ए लोकल विंड दैट इज वार्म इन नेचर एंड ब्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन। चिनूक मतलब एक लोकल विंड है, जैसे हमारे यहाँ समर्स के अंदर एक लोकल विंड चलती है लू, जो क्या होती है, गर्म होती है। ठीक है, इसलिए इसी तरह से यहाँ चिनूक भी एक लोकल विंड है जो कैसी है, गर्म हवाएं हैं, और जो कब चलती है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन। It helps in the melting of snow and the land becomes available for पास्चरिंग। और इस गर्म हवा की वजह से क्या होता है, वो आइस क्या होगी, वो जो स्नो की ब्लैंकेट बना हुआ जो चादर बनी होती है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। एंड इट इज सुटेबल एंड इट प्रोवाइड्स द सफिशियंट वाटर फॉर द पास्चरिंग फॉर द ग्रोइंग ऑफ ग्रास की। और वो पानी मेल्ट होकर वही जमा हो जाता है, उससे क्या हो जाती है, घास उग जाती है। तो ये जो चिनूक विंड है ये इस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। In North America, only 2% of the original grasslands remain. Farmlands have been formed by humans in the major parts of this grassland. And in North America में जो भी पार्ट था इसका वो अब ख़त्म हो चुका है। It means it has converted into the अदर वर्क्स की, कभी एग्रीकल्चर के लिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए, कुछ बिल्डिंग पर्पज़ के लिए क्या हो गया, वो ख़त्म हो चुका है। और अब केवल 2% पार्ट इसका बचा हुआ है, और बाकी एरिया पर क्या हो गया, फार्मलैंड। इट मीन्स द लैंड इज कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इज टोटली डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज अवेलेबल, दैट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। और नेचुरल वेजिटेशन जैसी होगी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होंगे,
वाइल्ड लाइफ। तो इस तरह से क्या है, जैसा एरिया का क्लाइमेट होगा उसी के अकॉर्डिंग नेचुरल वेजिटेशन और उसी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन तो हमने पढ़ ली है, अब पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस तरह के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मिलते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ द ग्रासलैंड इज ग्रास डोमिनेटेड। यू नो वेरी वेल, ग्रासलैंड है, इसका मतलब कौन सी वेजिटेशन मिलेगी, ग्रास की ही मिलेगी। देयरफॉर ट्रीज लाइक विलोज, पॉपुलर एंड एल्डर्स आर फाउंड वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल। लेकिन जो कम हाइट के जो पेड़ होते हैं जैसे विलोज है, पॉपुलर है, एल्डर्स है, ये भी इनके कुछ एरियाज पर मिल जाते हैं, जहाँ पर भी क्या है, इन दो रिवर्स का पानी है जो हमने पढ़े थे मिसिसिपी, उनका पानी क्या होता है, अवेलेबल है, तो थोड़ा सफिशिएंट है, जिससे क्या है वो थोड़े बड़े हाइट के हो जाते हैं। बाकी सारा एरिया किससे कवर्ड है, ग्रास से। ठीक है, द रीजन्स विद 50 सेंटीमीटर रेनफॉल आर एसेंशियली यूज फॉर फार्मिंग and this area is suitable for the farming because 50 centimeter rainfall is enough for the farming. Crops like soyabean, potatoes, alfalfa and cotton are cultivated in abundance। और ये कुछ क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। अल्फाल्फा एक घास का नाम है जो सबसे ज़्यादा इस एरिया में पाई जाती हैं, और ये जो क्रॉप्स हैं इनके लिए 50 सेंटीमीटर रेनफॉल सफिशिएंट होती है, इसलिए इन क्रॉप्स को वहाँ पर ग्रो किया जाता है। You know very well about the crops are also depend on the climate and the rainfall। कि जिस तरह की क्रॉप्स को जिस तरह के जितने पानी की ज़रूरत होती है, रेनफॉल की ज़रूरत होती है, उसी तरह से इनकी एरिया और इनकी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती हैं। The regions with insufficient or no rainfall are made into pasturing and कैटल रेयरिंग लैंड्स। और ये रीजन जहाँ पर क्या है, रेनफॉल सफिशिएंट नहीं है और घास भी धीरे धीरे क्या हो रही, सूख जाती है, तो उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रासलैंड्स के अंदर। और वहाँ पर पास्चरिंग का अर्थ होता है चारा, एंड कैटल रेयरिंग, वहाँ पर पशुओं को चारे के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लैंड इतनी सुटेबल नहीं होती किसी भी कल्टीवेशन वर्क के लिए, और रेनफॉल भी वहाँ पर सुटेबल नहीं है, इसलिए पास्चरिंग के लिए कैटल्स को वहाँ पर छोड़ देते हैं। बिसन और द अमेरिकन बुल इज़ द मेन एनिमल फाउंड इन दीज रीजन्स। और दो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन एनिमल्स हैं, एक तो बिसन है और दूसरा यहाँ पर है अमेरिकन बुल, जो इस एरिया में पाए जाते हैं। नाउ इट हैज़ बिकम ए प्रोटेक्टेड स्पीसीज एट इट वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ हंटिंग, बट नाउ दीज टू एनिमल्स हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट। एक होता है एक्सटिंक्ट, दूसरा होता है एंडेजर्ड। एक्सटिंक्ट का अर्थ होता है खत्म हो जाना, मतलब उसकी प्रजाति अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, और एक एंडेजर्ड होता है जो खत्म होने के कगार पर है। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ हंटिंग की वजह से आपको पता है वर्ल्ड में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। कुछ है कि बहुत कम संख्या बची है, इसका मतलब ख़त्म होने वाले हैं। तो इसी तरह से इस रीजन में भी ये जो बिसन और अमेरिकन बुल है वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। किसकी वजह से, हंटिंग की वजह से। द लार्ज कैटल फार्म्स आर कॉल्ड रेंचेज। और जो बड़े एरिया में जब कैटल फार्मिंग, मतलब जो कैटल्स के लिए छोड़े जाते हैं, किसके लिए, उनको चरने के लिए, पास्चरिंग के लिए, तो वो एरिया, वो फार्म्स क्या कहलाते हैं, रेंचेज। ठीक है, जैसे बहुत बड़े एरिया में जब हम कल्टीवेशन वर्क करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर फार्म कहते हैं, फार्म हाउस कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जब एनिमल्स को छोड़ते हैं चरने के लिए तो उसको क्या कहते हैं, रेंचेज। दे आर लुक्ड आफ्टर बाई दो मैन कॉल्ड द काउबॉयज। और उनकी जो टेक केयरिंग करते हैं, जो लोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, काउबॉयज। बिकॉज दे आर टोटली डूइंग ऑल वर्क्स इंक्लूडिंग द टेक केयरिंग एंड द लुक आफ्टरिंग ऑफ द ऑल कैटल्स विच आर लेफ्ट देयर विच आर सेंट देयर फॉर द पास्चरिंग। जिन पशुओं को वहाँ पर छोड़ते हैं पास्चरिंग के लिए, चरने के लिए, उन सभी की वो टेक केयर करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं काउबॉयज। अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इंक्लूड रैबिट्स, कॉयटर्स, प्रेरीज डॉग्स एंड द गोफर। ये कुछ और एनिमल्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। इट मीन्स दे आर गेटिंग द प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फ्रॉम दीज ग्रासलैंड, सो दे आर सर्वाइविंग हेयर। नेक्स्ट है लास्ट इसमें ह्यूमन लाइफ इन द प्रेरीज, की हाउ द पीपल आर लिविंग देयर, कि इन रीजन्स में ग्रासलैंड के साथ एरियाज में रेनफॉल का एरिया भी कम है। ठीक है, रेनफॉल का रीजन्स भी जो मेजरमेंट है वो भी कम है, लेकिन वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। द पीपल ऑफ दिस रीजन आर मेनली एग्रीकल्चरल फार्मर्स बिकॉज दे आर दिस एरिया इज कवर्ड ए वास्ट लैंड एरिया
and some regions are having the more than 50 centimeter rainfall, and 50 centimeter rainfall is sufficient for some commercial crops which we have discussed like cotton, soybean and the potatoes. So they are doing only agriculture works. Wheat is the main crop that is cultivated for both commercial and local use, and wheat is the main crop that is cultivated by these people who are living in these regions, and this is used for only commercial and for self consumption. In India, the wheat is cultivated is also for both purpose. इंडिया के अंदर भी कॉमर्शियल पर्पज से भी ग्रो करते हैं जिनके पास ज़्यादा एरिया होता है कल्टीवेशन का, और अपने फैमिली कंजप्शन के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी व्हीट को दोनों ही पर्पज के लिए कल्टीवेट किया जाता है। अदर देन व्हीट, कॉर्न, ओट्स, बेरली, राई एंड ऑयल सीड्स आर कल्टिवेटेड इन दीज रीजन. These are the other crops which are grown in these regions. The soil is rich in humus and other organic materials. It means soil is suitable for doing the cultivation work. So they are doing the agriculture work and receive moisture from the snow melted by Chinook, which ultimately provides fertilizes land for फार्मिंग. और चिनोक लैंड जो विंड है उसकी वजह से क्या है, मॉइस्चर हमेशा रहता है और वो आइस मेल्ट होती रहती है जिसकी वजह से मॉइस्चर है, इसलिए कभी यहाँ पर ड्राइनेस नहीं होती लैंड के अंदर, और इसकी वजह से क्या है ये लैंड सुटेबल है किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए. द फार्मर्स हैव एडवांस्ड नॉलेज एंड मशीनरी इन फार्मिंग दैट हैज मेड, और फार्मर्स को काफ़ी अच्छी नॉलेज है किसकी, टेक्नोलॉजी की और मशीनरी की, और इसकी वजह से दैट हैज़ मेड नॉर्थ अमेरिका द बिगेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग कॉन्टिनेंट. और इसकी वजह से क्या है, नॉर्थ अमेरिका संसार के अंदर सबसे बड़ा फूड प्रोड्यूसिंग कॉन्टिनेंट है. मतलब फूड आइटम्स जो ग्रेन्स के हैं स्पेशली सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रो होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में. The USA and Canada are two of the most developed countries of the world that lie in this region. And you know very well the USA and Canada both countries are developed. They have developed due to this food producing continent. क्योंकि वो किस में आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, और इसी की वजह से दोनों ही कंट्रीज आज क्या हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं एंड वेरी पावरफुल इन द वर्ल्ड ऑल्सो. Farmers use tractors, harvesters and combines in the field. These are the machinery which are used by the people, by the farmers of the prairie region. The surplus wheat production has earned this region the title of granaries of the world, and a large area is cultivated by the wheat, so it is called the granaries of the world. Granaries होता है स्टोर करने के लिए, किसी भी ग्रेन को स्टोर करते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोर किसका होता है, व्हीट का, इसीलिए इस एरिया को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं. अदर देन फार्मिंग, पीपल आर इंडल्ज इन डेयरी फार्मिंग. द पीपल आर डूइंग द डेयरी फार्मिंग बिकॉज लार्ज एरिया इज कवर्ड बाय द ग्रासलैंड, सो इनफ एंड सफिशिएंट फूड इज एंड पास्चर इज अवेलेबल फॉर द rearing of the animals, so they are busy in the dairy farming also. इट इज़ ए ह्यूज इंडस्ट्री लाइक द फूड इंडस्ट्री, और डेयरी फार्मिंग दूध से बने हुए जो चीज़ें हैं उसकी भी बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर इंडस्ट्रीज जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज हैं. टुगेदर क्रॉप एंड डेयरी इंडस्ट्री मेक द बिगेस्ट मार्केट फॉर द फूड इंडस्ट्री इन दिस रीजन. और इसी के वजह से क्या है, क्रॉप मतलब ग्रेनरीज, फूड आइटम्स और डेयरी इंडस्ट्री दोनों ही यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट है यहाँ पर. Coal and iron ore are the major mineral deposits found in this region. It means some natural resources and the minerals are also found here in this region. The access to these minerals made railways, roads and canals possible in this region, and due to the presence of the minerals, it is suitable for developing the all types of transport here, because for exporting and importing some food items and the milk items, this is an essential thing. Cities like Chicago, Minneapolis, Indianapolis, Kansas and the Denver are the important cities of the USA. These are some commercial important cities of USA. Cities like Edmonton, Calgary, Winnipeg and Saskatoon are important cities of Canadian prairies. ये कनाडा की हैं. विनीपेज इज नोन एज द गेटवे टू द प्रेरीज, और विनीपेज को सब गेटवे ऑफ द प्रेरीज
कहते हैं, मतलब यहाँ से क्या इसकी एंटरिंग है। दिस एडवांसमेंट हैज़ मेड दिस रीजन द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड। और एग्रीकल्चर में, डेयरी फार्म में इसी एडवांसमेंट की वजह से ये रीजन संसार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई गई है किस पर, फूड की और मिल्क से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है, साथ में मिल रहा है इसकी इंडस्ट्री। और इसी के वजह से क्या है, कनाडा और यूएसए सबसे ज़्यादा क्या है, पावरफुल कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, ये हमारा